Okay, friends. Good morning. My name is Hussein, and I'm holding 13 years of industrial experience, and I will be your trainer for VBA Foundation Batch, VBA Excel Foundation Batch. Okay, just confirm me. Are you able to see my screen? Just a second. Let me check the setting part. Okay, you are able to view my screen, right? You are able to see the presentation in the presentation mode. Okay, fine. Okay, so let's quick. This would be the agenda for our day. The agenda would be introduction, what is VBA and why should we learn, course information, and payment mode. So, as I have given you my introduction, my name is Hussein Patan and I'm holding 13 years of industrial experience and I will be your trainer for VBA Excel macro batch, foundation batch. Okay, so quickly we will go through the introduction part. So, online batch, will you please, sorry, online friends, will you please start up with your introduction? Any one of you can go first. Hello? Okay, Sagar, nice meeting you. So, Sagar, you are using VBA in your company? Okay, so you are working in which department? Okay, payroll department. Okay, fine. Okay, next is Neha. Okay, so you have done MCA's MCM. Okay, so do you hold any sort of knowledge into programming language? Okay, so you when you were working into a logistics company, so what was your main role over there? It was related to the reporting task or the shipment task? Okay, so you might be preparing manual documents, right? Okay. I'm asking you this question because I too belong to the logistic industry, and there are lots of manual tasks which we needs to do and which we needs to automate it. Okay, so going forward with the offline batch. So Nadim, will you please introduce yourself? Acha, Sagar and your friend. Okay. Okay. So since how long you are into this implementation department? 3 to 4 years. So have you used recording of macros or any other tools? Hmm.
Okay, so are you aware about the basic idea about? Okay, okay, fine, great, no worries. Okay, next, Ganesh Gaikwad. Okay, MIS Executive SBI card. Okay, so your major responsibility over there is towards the Excel files, only Excel files, nothing else, only reporting task. Okay, fine, great. Okay, so means since how long you are involved into this VBA task in your office? Okay, okay. So have you worked on recording of macros? So what was your experience towards recording of macro? Okay. Right. That means there are certain limitations into recording of macro. Basically, recording of macro is not a dynamic coding. Okay. For example, if you are recording a macro for 100 rows, rows of report, and suddenly you got a report of 200 rows. So it will work only up to 100 rows. It will not work from 101 to 200. So this is the limitation of it. And recording of macro usually it's not preferable. It's only been used to see what type of coding is being used. In terms, if you forget any sort of coding, you don't remember any sort of command. So you just record it, understand it, and then you can write it in your own words. Okay, that is why recording of macro is mostly used by the professionals. Okay, so our next topic is what is VBA and why should we learn? So here we come, what is VBA? So VBA is basically Visual Basics for Application. Okay, it is designed and developed by Microsoft. Okay, and it works on all the MS Office application. That is your Outlook, Word file, Excel, PPT. However, mostly it is being used in Excel itself. Okay, so नहीं हम सिर्फ एक्सेल पार्ट कवर करेंगे. Yes. Sorry to interrupt. Everyone are comfortable with Hindi and English language, right? Neha and Sagar. Okay. So हम यहाँ पे जो कवर करेंगे हम एक्सेल पार्ट कवर करेंगे. ठीक है. जो आउटलुक वाला जो पार्ट है, ओके, वो कवर होता है आपका एडवांस लेवल पे. आउटलुक पीपीटी जो होता है, ये जो पार्ट है, ये एडवांस वीबीए मॉड्यूल में कवर होता है. अभी फिलहाल हम एक्सेल पे काम करेंगे बिकॉज एक्सेल जो है दिस इज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन. ओके, कंपेयर टू वर्ड. अगर आप देखोगे आजकल लोग रिज्यूमे भी एक्सेल पे ही बना रहे हैं. द रीजन इज कि इट मेक्स यू वेरी फिजिबल टू मूव अराउंड द एंटायर शीट. ओके, वेर इन वर्ड में क्या रहता है, वर्ड इतना फिजिबल नहीं है कि आप उसको ऊपर नीचे करो. राइट, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं. तो इसके लिए हम एक्सेल में ही प्राइमरी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आपने रेयरली कभी वर्ड यूज किया होगा. राइट, तो इसके लिए
एक्सेल में ही हम सीखेंगे इसको। यस, एक्सेल एंड आउटलुक ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, एज एवरीवन नोस कि एक्सेल इज द प्राइमरी सोर्स इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। ओके, इसके लिए काफी सारे चीजें थे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था वीबीएम। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की एक कम्युनिटी पेज है। जब आप उस कम्युनिटी पेज पे विजिट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट के काफी सारे नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं अभी, जैसे कि पावर बीआई हो गया, पावर क्वेरी हो गया, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स। अभी नदीम इम्प्लीमेंटेशन टीम में, राइट। सो आने वाला टाइम जो है, इट्स एन रोबोटिक्स प्रोसेस। आपने आपके ऑफिस में सुना भी होगा आरपीए, आरपीए। ओके, सो आरपीए के लिए यूआई पाथ काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि instead of getting that separate softwares, why don't we get everything under one single license? And उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पावर ऑटोमेट एंड पावर एप्स क्या है बेसिकली, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। ओके, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का होने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। ये क्या है, दिस इज लेस कोडिंग पार्ट है। अगर आप मैक्रो में देखोगे तो सब कुछ कोडिंग ही है, लेकिन पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, इट्स टोटली डिफरेंट। इसमें क्या है, लेस कोडिंग विथ मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि उसमें इनबिल में ही काफी सारे वो लोग फीचर्स देने वाले, और ऐसे फीचर्स देने वाले हो कि आप जस्ट क्लिक, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहां पे आप थोड़ा सा कोडिंग पार्ट करोगे, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, बिकॉज ये मैं यूज करता हूँ ऑफिस में, तो इस वजह से मुझे इसका इन डेप्थ पता है। सो कमिंग बैक टू दिस वीबीए पार्ट, सो जैसे कि ये एक्सेल में इनबिल्ड ही है, इसके लिए कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है, कंपनी का कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ले लिया, एमएस ऑफिस का, सो यू गेट दिस फीचर्स इनबिल्ट। इसके लिए अगर आप देखोगे कि ऑफिस में सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि ये यूज की होता है, तो सिंपल सी चीज है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इजिएस्ट लैंग्वेज, ओके, ये क्या चीज है? तो इजिएस्ट लैंग्वेज इसलिए है कि आप डे टू डे बेसिस पे आप एक्सेल पे काम करते हो, राइट। जब आपने एक्सेल सीखना स्टार्टअप किया था, इनिशियल स्टेज पे आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था, हर किसी ने स्ट्रगल किया था, ये क्या चीज है, इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, राइट। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समिफ, राइट, समिफ्स, काउंटिव, वी लुकअप। ओके, दिस आर वेरी रेयरली मींस वेरी वाइडली यूज्ड एक्सेल फॉर्मूलेस, एक्सेल फंक्शंस, ठीक है। तो जब आपने सीख रहे थे तब आपने थोड़ा बहुत चैलेंजेस अपनी फेस किया था, लेकिन आज जब आप किसी फ्रेशर आपके कंपनी में ज्वाइन होता है, तब यू आर एज अ ट्रेनर टू हिम, राइट, यू आर एज अ मेंटर टू हिम, यू टीच देम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके साथ वैसा ही सिनेरियो होगा। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको जो लॉजिक समझ में आएगा, तब दिस विल मेक यू द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, and you will be like, yes, now you are able to make it. Okay, and I will tell you some tricks how this can be more easier. Okay, and object oriented language माने कि वर्कबुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वर्कबुक के अंदर क्या है, वर्कशीट्स है, वर्कशीट्स के अंदर क्या होते हैं, रेंज, सेल्स, राइट। फिर उसके बाद चार्ट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, काफी सारी चीजें। तो ये सारी जो चीजें, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, ओके, दिस आर ऑल योर ऑब्जेक्ट्स। एंड वीबीए का एक पैटर्न है कोडिंग लिखने का, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि इसका एक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया ना, यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक।
while writing the codings. Okay, so do you have any question towards it as if now regarding VBA? ये बेसिकली लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, वैसे ये एक विजुअल बेसिक, ठीक है। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? व्हाट इज VBA? ओके, सो व्हाई शुड आई लर्न VBA? अभी सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने बताया ही है कि आपको टास्क को सिंप्लीफाई करना है, राइट? अभी जिस टीम ने आपको ये बना के दिया हुआ है, अभी उनका सपोर्ट आपके लिए बंद हो जाएगा। सो इट्स वेरी बेसिक थिंग कि यू नीड टू असिस्ट योर कलीग्स। अगर उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, देन यू नीड टू असिस्ट देम। जो एग्जिस्टिंग कोडिंग है उसी में आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे, आपको पूरे कोडिंग्स लिख के बैठना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि कहाँ पे एरर आया, किस तरीके से उसको फिक्स किया जाता है, राइट? ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तभी तो आप एक सपोर्टिंग हैंड की तरह काम करोगे। ओके, तो उसके लिए फाउंडेशन इज द प्राइमरी थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आपका नाम क्या, सॉरी? गणेश। जैसे कि अभी गणेश MIS में है, ओके, सागर भी MIS में है। अगर आप MIS में हो, यू आर वेरी गुड इन टू एक्सेल, ठीक है, काफी सारी चीजें आपने एक्सेल में सिंप्लीफाई किया है, लेकिन सडनली आपने कुछ ऐसा कर दिया कि एक बटन क्लिक पे आपका पूरा रिपोर्ट ही बन रहा है, तो आपके मैनेजर के सामने आपका इंप्रेशन, आपको देखने का नजरिया किस तरीके से होगा, राइट? यू विल बी हीरो फॉर इट। राइट, आपका जो वेटेज है कंपनी में, अल्टीमेटली आपका वेटेज बढ़ेगा, राइट? आपका डिमांड बढ़ेगा। एंड आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऐसा है ना, क्या आपके बाजू में बैठने वाला आपका कॉम्पिटिटर आपके ऑफिस में, राइट? तो इसके लिए आपको आपके स्किल सेट्स जो है ये अपग्रेड करना तो बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू सी अ फादर, उनके जमाने में कैसा था, एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, रिटायरमेंट तक 30-35 साल एक ही कंपनी में थे, एक ही टाइप का जॉब करते थे, राइट? दे वर लीस्ट बॉदर टुवर्ड्स व्हाट इज प्रमोशन, राइट? कुछ नया सीखना है, क्या करना है, दे वर टोटली लीस्ट बॉदर। लेकिन आज का जनरेशन वैसा नहीं है, जनरेशन हैज गॉट टोटली चेंज। अगर आपको कुछ नया सीखना है, आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, व्हाट यू डू, यू डायरेक्टली स्विच ऑफ, यू मूव फॉरवर्ड, कंपनी को छोड़ देते हो आप। क्यों छोड़ते हो? द रीजन इज कि आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बैड मैनेजर। जब आप नए कंपनी में जाते हो, सबसे पहली चीज तो सामने वाला यही सोचेगा, राइट, कि मैं इसको लूं क्यों मेरे टीम में, इसके पास ऐसी क्या क्वालिटीज है जो मेरे काम आएगी, मेरी टीम की काम आएगी। इवन अगर आप एज एन इंटरव्यूअर हो गए या फिर हायरिंग मैनेजर के नजरिए से सोचोगे, कोई भी बंदे का रिज्यूमे आपके पास आता है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, राइट? तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में बेसिकली वही चीज होती है कि वो देखते हैं कि इसको कितना कुछ आता है, मैं इससे क्या काम करवा सकता हूँ, राइट? ये सारी चीजें आपका, इसके लिए तो कहते हैं ना, रिज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पर्सन, करेक्ट? तो जितना कुछ आप आपके रिज्यूमे में लिखोगे उतना कम है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है कि आप खुद उसमें फंस जाओ, राइट? तो ऐसी चीजें हैं कि इसकी बेसिकली जब भी आप रिज्यूमे को बनाते हो ना, एज एन हायरिंग मैनेजर, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप किसी का रिज्यूमे अगर चेकआउट करोगे, तो सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या देखोगे? स्किल सेट क्या है, राइट? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या किया है, ओके, रादर देन कंसिडरिंग इज वर्क एक्सपीरियंस, आप यही देखोगे, राइट सागर एंड नेहा, कि स्किल सेट्स क्या है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कुछ किया है कि नहीं, ओके। अगर स्किल सेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में इफ यू आर सेटिस्फाइड, देन यू कम इन डिग इनटू द वर्क एक्सपीरियंस कि इन्होंने जॉब किस तरीके से किया हो, करेक्ट? सो फर्स्ट थिंग इज ऑटोमेट द टास्क। जैसे मैंने बताया कि आप में से दो लोग तो ऑलरेडी MIS में है, ओके, सो यू नीड टू ऑटोमेट दो टास्क, राइट? एक्सेल पे जो रिपोर्ट्स आप 1-2 घंटे में कर रहे हो, यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट इन सच अ वे कि 15-20 मिनट्स में टास्क हो जाए,
so that you would be getting additional responsibility. आपके पास जब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी तो आप कंपनी में ग्रो करोगे। अगर आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेम काम करते होंगे, तो आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा। इवन इन फैक्ट आपके जो कलीग्स हैं वो ग्रो अप करेंगे, लेकिन आप ग्रो अप नहीं करोगे, राइट। कंपनीज में हमेशा दो टाइप के लोग रहते हैं, एक स्किलफुल और एक सबसे ज्यादा बातें करने वाले, जिसको कहते हैं बोल बच्चन, राइट। कोई कोई बोल बच्चन के दम पे आपका प्रमोशन ले लेते हैं, कोई कोई होते हैं जो स्किल्स के बेसिस पे प्रमोशन लेते हैं, राइट। स्किल्स के बेसिस पे प्रमोशन कौन लेता है? जो नॉन टॉकेटिव बंदा रहता है। हमेशा दो टाइप के बंदे रहते हैं, राइट, टॉकेटिव एंड नॉन टॉकेटिव। नॉन टॉकेटिव बंदा कैसा है कि वो बात नहीं करता, इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आपके मैनेजर्स ने आपको फीडबैक दिया होगा, योर विजिबिलिटी इज वेरी लो, राइट। व्हाट डज इट मीन्स दैट द विजिबिलिटी इज वेरी लो? उसका मतलब यही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो लोगों के सामने। अगर आपको वो खड़ा कर दे कंपनी में एंड बोले कि कितने लोग इसको पहचानते हैं, हार्डली फ्यू ऑफ द मेंबर्स जिसके साथ आप चाय पीने जाते हो, राइट, कुछ टाइम स्पेंड करते हो कैफेटेरिया में, ओके, आपके टीममेट्स, ये लोग ही आपको पहचानेंगे, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपको पहचानेंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे? क्योंकि कभी आपका उनके साथ इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो इसके लिए आपकी विजिबिलिटी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आज आप MIS में हो, ओके, आपके स्किल सेट इतने अच्छे हो गए कि इन फ्यूचर इंटरनल जॉब पोस्टिंग आ गई एंड सडनली यू हैव मूव टू द ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, तो हायरिंग मैनेजर ने सोचना नहीं चाहिए उसको मैं लूँ क्या मत लूँ, अरे इसने उसके खुद के डिपार्टमेंट में इतना कुछ किया है, अगर ये मेरे डिपार्टमेंट में आएगा तो इसको और एक्सपोजर मिलेगा, इसको और थोड़ा सा ग्रूम अप करेंगे तो ये और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें है ना, मैनेजर्स हमेशा सोचते हैं मैं क्यों लूँ। सो यू शुड बी इन अ पोजिशन, आपके जो एक्शंस होते हैं, आपने जो काम किया हुआ है, उसके थ्रू आपको हायरिंग मैनेजर्स को वो बताना पड़ेगा कि क्यों आपको उसको लेना चाहिए। सो दैट मैनेजर शुड नॉट आस्क यू व्हाई शुड आई हायर यू, आपका रिज्यूमे ही बताना चाहिए व्हाई वी शुड हायर यू, गॉट इट। देन नेक्स्ट थिंग इज कि ये चीज करने के बाद आपको दिख रहा है, एक मिनट, वहां से बस लाइट ऑफ कर देना। नहीं नहीं, इसकी वजह से होता है, दिख रहा है, इज इट विजिबल ना? ओके, ये कोर्स करने के बाद है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, ओके। अभी आपको सबको एक्सेल आता है, तो एक्सेल के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक्सेल तक ही आपको लिमिटेड नहीं रहना, राइट। नेक्स्ट क्या है? यू हैव टू मूव अहेड। नेक्स्ट थिंग इज VBA। उसके बाद क्या? राइट, पावर क्वेरी है, पावर BI है, क्योंकि फिर आपको चार्ट्स भी तो बनाने हैं, राइट। तो आजकल तो पावर BI काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है विजुअलाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, देन SQL आता है, करेक्ट। फिर और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो पावर ऑटोमेट हो गए, पावर एप्स हो गए, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा आपको VBA, दिस विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसके जो लॉजिक्स होते हैं ना, लॉजिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सिर्फ सिंटेक्स, सिंटेक्स यानी कि क्या, जो सेंटेंसेस लिखते हैं ना, ओके, दैट में वैरी, लेकिन जो लॉजिक रहता है ना, लॉजिक सेम रहता है। जैसे लूपिन करना, लूपिन मतलब क्या, एक ही चीज को बार बार घुमाना until and unless you get the result, ओके। तो वो लॉजिक सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका आपको लूप ही करना पड़ेगा उसको। अगर एक ही टास्क आपको 10 बार करना है तो आपको घुमाना पड़ेगा उसको, राइट, लाइक योर व्हील, चक्के को घुमाओगे, चक्के को घुमाओगे तभी तो आप आगे जाओगे, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, राइट। अगर चक्का घूमेगा ही नहीं तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचोगे, जगह पे ही खड़े रहोगे, राइट।
तो वैसा ही है कि लूपिन उस तरीके से काम करता है। एक मिनट, हाँ पूछिए ना। करियर प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बात करूं, ओके, तो ये अगर जब आप सीखते हो वीबीए का, क्योंकि वीबीए डेवलपर्स बोल के अलग से जॉब पोस्टिंग्स निकलती है, ठीक है। वीबीए डेवलपर का आप जॉब कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट का जॉब कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने और एडवांस लेवल के कोर्सेज किए देन यू कैन बी अ प्रोफेशनल डेवलपर्स, सीधा आपको आईटी इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी, ओके। क्योंकि अभी अगर आप नौकरी पे लिंक्डइन पे देखोगे, सबसे डिमांडिंग जो ये है जॉब्स है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट पार्ट, ओके, इट्स फॉर वीबीए डेवलपर्स। वीबीए डेवलपर्स के अगर आप देखोगे ना, कंटिन्यूस जॉब पोस्टिंग्स है, कंटिन्यूस। और वीबीए डेवलपर ऐसा है ना, हर एक इंडस्ट्री में लगता है ये, हर एक इंडस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट में लगता है। क्योंकि रिसेंट एग्जांपल ऑफ माय कंपनी, हम जब हायर कर रहे थे ना, अब प्राइमरी रिक्वायरमेंट वाज कि अगर एक्सपीरियंस बंदा हम ले रहे हैं, he should have a basic knowledge of VBA, मैक्रोस क्या होता है, कम से कम उसको रिकॉर्डिंग के बारे में तो भी पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रोस होते क्या है। द रीजन व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि हमारा जो टास्क है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग पार्ट, ऑडिटिंग पार्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स के जो डेटाबेस आता है, ओके, तो उससे हम हमारा रिपोर्टिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फोरकास्ट बनाना होता है, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा बनाने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो हमारा वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही। एंड उसी तरीके से अगर आप प्रोक्यूरमेंट में भी जाओगे, ओके, आई एम इन टू दी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, हमको मैनुअल डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे बनाने होते हैं जस्ट फॉर द कस्टम क्लियरेंस पर्पस। हम एक्चुअल इनवॉइसेस कभी कभार देते नहीं है, क्योंकि एक्चुअल इनवॉइसेस अगर सबमिट करते हैं, आई एम टेलिंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल, एक्चुअल इनवॉइसेस अगर सबमिट करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ओके। एंड वारंटी प्रोडक्ट अगर हम रिटर्न करते हैं, तो उसमें वारंटी वाले जो रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी अननेसेसरी पे आउट करके कंपनी का लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम डमी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसकी वैल्यूज कम करते हैं, इतनी कम करते हैं कि कस्टम वैल्यू जो है उसकी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल की तरह रहती है। क्योंकि कस्टम्स जो है एंड ऑफ द डे जो भी आपका इनवॉइस डिक्लेयर किया है, इनवॉइस पे जो भी फिगर्स डिक्लेयर किए उसके बेसिस पे ही चार्ज किया जाता है, ओके। तो इसके लिए हम डमी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं एंड एक्चुअल इनवॉइसेस हम ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं, वी डोंट गिव इट वाया द कुरियर, ओके। उसी तरीके से अगर आप प्रोक्यूरमेंट में देखोगे, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट में आपको रेट्स कंपैरिजन करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि आप 100 प्लस सप्लायर्स के साथ डील अप करते हैं अक्रॉस ग्लोब, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ओके, जहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ओके। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो यू कुड रियलाइज कि आप जो ऑफिस में आपके टास्क है एक्सेल रिलेटेड, आप कहाँ कहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होता रहेगा, अरे ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स का पैटर्न होगा, इट वुड बी सिमिलर टू अ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स कैसे रहते हैं, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, हमारा पैटर्न भी वैसा ही होगा। सबसे पूरा एक्सेल कवर होगा, ओके। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे एंड एंड ऑफ द कोर्स में जब आप पहुंचोगे देन यू वुड बी रियलाइजिंग कि आप स्टार्टिंग में कैसे थे, आप कैसे हो। टोटली हार्ड कोडिंग, डायनेमिक कोडिंग्स, ठीक है, एकदम हार्ड लेवल पे रहेंगे आप, ओके। अपना पैटर्न ही वैसा रहेगा कोर्स का, ओके। एंड as I have said you, this is widely used application, okay। एक्सेल का भी एडवांस, मतलब अभी जो आप बेसिक में सीखोगे ना,
ओके, जिस तरीके से आप कोडिंग सीखोगे बेसिक लेवल पे, एडवांस मॉड्यूल में क्या रहता है कि उसको और किस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली आउटलुक एंड नॉट ओनली पीपीटी, मतलब एप्लीकेशंस टू एप्लीकेशंस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये तो आप सीखोगे ही सीखोगे। इसके अलावा आप ये भी सीखोगे कि अभी आपने जो कोडिंग्स लिखे हैं, क्योंकि अभी हम जो कोडिंग्स लिखेंगे ये काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा। ओके, इसमें हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे, लेकिन एडवांस लेवल पे और थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल होगा। ओके, कि किस तरीके से आपको कलेक्शंस इस्तेमाल करने हैं। ओके, फिर किस तरीके से वेरिएबल्स को आप घुमा सकते हो, राइट। कलेक्शंस अगर आपने एक पार्ट पे रख दिया, आप किस तरीके से कलेक्शंस को इंपोर्ट करके उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। वो सारी चीजें आप एडवांस लेवल पे सीखोगे। एडवांस लेवल तो एकदम टोटल अलग ही लेवल है। ओके, एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने एडवांस लेवल कर लिया ना, ओके, आपके लिए आईटी इंडस्ट्री का पाथ खुल गया। इसीलिए तो उसको एडवांस लेवल कहते हैं ना। रिड्यूस टैट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, टर्न अराउंड टाइम। अगर आपने विद इन टैट में का सारी चीजें कंप्लीट कर ली, फर्स्ट थिंग तो क्लाइंट की तरफ से तो बाय डिफॉल्ट एप्रिसिएशन आएगा। जब मैं टैट की बात कर रहा हूँ, इट नॉट ओनली सेविंग ऑफ टाइम, इट्स कंसिडरिंग द एक्यूरेसी पार्ट। क्योंकि अगर आप टाइम के पहले कंप्लीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाला आपका एक्यूरेसी चेक करेगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक घंटे का काम अगर ये 5 मिनट में या 10 मिनट में कर रहा है, सो व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी परसेंटेज, करेक्ट। हम्म, करेक्ट, करेक्ट, यस। सर्विस इंडस्ट्री का मेन बैकबोन है टैट। अगर आप टाइम पे सारी चीजें कर रहे हो, क्लाइंट तुमसे खुश है, ओके। बिजनेस कैसे मिलता है पता है आपको? इट्स वेरी सिंपल थिंग। देखो, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी मिलेगी मैनेजर की तरफ से? अगर आपको जो टास्क असाइन किया गया है, अगर आप वो टाइम के पहले कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स का टास्क है, यू आर कंप्लीटिंग इट विद इन 15 मिनट्स, आपके पास 45 मिनट्स का बफर टाइम है, तो आपको मैनेजर आइडल नहीं बिठाएगा। आपको मैनेजर क्या बोलेगा? ओके, तेरे पास 45 मिनट्स का बफर टाइम है, आइडल टाइम है, जस्ट डू वन थिंग, कंप्लीट दिस टास्क। अगर वो भी टास्क अगर आप 15-20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो, ओके, तो पहले आप जो 60 मिनट्स में एक टास्क कर रहे थे, आज आप 40 मिनट्स में 2 टास्क कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, राइट। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मतलब आपका डिपार्टमेंट ग्रो अप हो गया। आपका डिपार्टमेंट ग्रो अप हो गया मतलब आपका मैनेजर ग्रो अप हो गया। इट्स वेरी कॉमन फैक्टर। मैं बढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो जूनियर है वो 1 लेवल ऊपर आएगा। अगर मैं ऊपर जाऊंगा, इट्स अ लैडर, राइट। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे पीछे जो बंदा है वो एक स्टेप ऊपर आएगा। वैसे ही करियर पाथ है, एंड बिजनेसेस भी वैसे ही मिलते हैं इनको। अगर आपने क्लाइंट को बता दिया कि अर्लियर आवर टाइम वाज 60 मिनट्स, नाउ वी आर एबल टू मेक इट इनटू 30 मिनट्स। अगर 15 मिनट्स का 30 मिनट्स बोल दिया, 15 मिनट्स बफर रख के, वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर बिजनेस फ्रॉम यू, तो क्लाइंट क्या बोलेगा? अरे हाँ ठीक है, देने में प्रॉब्लम ही नहीं है, 60 मिनट्स का अगर 30 मिनट में कर रहा है और एक एक काम दे देते हैं, राइट। इस तरीके से वो बिजनेसेस ग्रो अप होते रहते हैं। ओके, वेरी बेसिक थिंग। फिर जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस योर एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी, सेव टाइम एंड मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
सेव टाइम एंड मनी। अगर आप टाइम बचा रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा बच रहा है, करेक्ट। ये चीज है कंपनी की दृष्टि से, तो यही चीज है। प्रोग्रेस इन योर करियर, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा। बी मोर एम्प्लॉयबल, व्हाट डज दिस मीन, बी मोर एम्प्लॉयबल? Sagar and Neha, will you please like to answer it? Be more employable. ओके, देखो जब भी हम ये बात करते हैं बी मोर एम्प्लॉयबल, मतलब आपका आपके डिपार्टमेंट में वेटेज बढ़ रहा है, राइट। आप आपका जॉब सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि जब ले ऑफ्स की बात आती है, एज अ मैनेजर मैं अगर बात करूं, तो सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा? मैं मेरे स्किलफुल बंदे को निकालूंगा या अनस्किलफुल बंदे को निकालूंगा? राइट, अनस्किल्ड को ही निकालूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। अगर मैंने स्किलफुल बंदे को निकाल दिया, वो जो जिसको कुछ आता ही नहीं, वो कैसे क्या उस बंदे का बैकअप बनेगा? अगर मैं स्किलफुल बंदे को बोलता हूँ कि बॉस जो अनस्किल्ड बंदा है उसको मैं निकाल रहा हूँ, तो तुझे उसका भी काम करना पड़ेगा। भले इनिशियल स्टेज पे आपको लगे कि यार यार क्या ये डबल काम दे रहा है, दो बंदों का काम मुझे करवा रहा है, लेकिन आप ये नजरिए से देखोगे कि बॉस उसका ले ऑफ हो रहा है लेकिन मेरा जॉब सिक्योर हो गया। वो बंदे को कंपनी ले ऑफ में निकाल रही है, बट आई एम इनटू अ ड्राइविंग सीट, कि मैं मेरा जॉब बचा के रखा हूँ। ठीक है, मुझे आज दो बंदे का काम कर रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो, मेरी रोजी तो चल रही है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी रोजी चली गई, करेक्ट। सो बी मोर एम्प्लॉयबल। हमेशा आपकी कंपनीज में आपने देखे होंगे कि फेवरेटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल द इंडस्ट्री, राइट। फेवरेटिज्म किस बेसिस पे होता है? राइट, दो, एक तो आपको जनरली सबको पता है, एक चीज की फेवरेटिज्म होता है, दूसरा स्किल सेट। अगर आपके स्किल सेट अच्छे हैं तो मैनेजर आपको एक उसके नोट गुड नोटबुक्स में रखता है, एंड आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। पूरे साल भर नहीं देगा स्पेशल ट्रीटमेंट, वो कब देगा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट? एट द टाइम ऑफ अप्रेजल। साल भर वो तुमको ऐसा बिहेव, आपसे ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो आपको पहचानता नहीं, आपसे बस उसको काम से मतलब है। ओके, लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आएगा, उस टाइम पे यू विल बी एट द टॉप एंड अदर गाइज विल बी अंडर यू। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि काफी सारे लोग होते हैं कि देते हैं कि मेरे मैनेजर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया साल भर, तो साल भर तुमसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि बॉस, मेरे मैनेजर का मेरे पे ध्यान था, एंड यहाँ पे उसने मुझे रिवॉर्ड दिया। साल भर उसने एक ईमेल भी नहीं भेजा होगा आपको अप्रिसिएशन, लेकिन अप्रेजल के टाइम पे डेफिनेटली विल बी कंसिडरिंग। यस, करेक्ट। यस, करेक्ट। देखो दरवाजे तुम्हारे कब खुलेंगे पता है? यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ विद इन योर डिपार्टमेंट। आपके पास स्किल सेट है, आपको पता है कि मैं वीबीए में एक्सपर्ट हूँ, मैं ये टास्क सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ओके, आपके डिपार्टमेंट के बाहर जाओ, अकाउंट्स वालों को हेल्प करो, प्रोक्योरमेंट वालों को हेल्प करो, एचआर को हेल्प करो, एडमिन वालों को हेल्प करो। आज के डेट में सबसे स्ट्रगलिंग डिपार्टमेंट है ना किसी भी इंडस्ट्री में, एडमिन है। उनको कोई क्या बोलते हैं, गिनता ही नहीं है किसी। दे आर क्या बोलते हैं, नॉन अप्रिशिएटेड पर्सन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड उनके पास मैनुअल टास्क इतना है कि अगर आपने उनको हेल्प आउट किया ना उस चीज में, आपकी वो हवाई है ना, मार्क माय वर्ड्स, आप बस एक बार किसी भी एडमिन वालों को हेल्प आउट करो,
उसका टास्क सिंप्लीफाई करने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी हीरो इन योर कंपनी, क्योंकि एडमिन से सिर्फ लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये करे वो करे, ओके, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं जाता। एंड अगर आपने विलिंगली होके अगर उनकी मदद की है ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको कंपनी में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्पेशली रिलेटेड टू योर कैब। अगर इनको कैब फैसिलिटीज है स्पेशली रिलेटेड टू योर कैब, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं। ऑब्वियसली आपने एक बार उसकी मदद की, लेकिन वो जिंदगी भर आपका वो एहसान रखेगा, यार इसलिए बंदे ने मेरी मदद किया था, कोई आया नहीं लेकिन ये आया विलिंगली। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखना कि ये भी एक चीज है जो आपको बहुत एम्प्लॉयबल बनाता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको लोग जानने लग गए, आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, एंड इन फ्यूचर मेरे डिपार्टमेंट में अगर कुछ रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, तो मैं नितिन को अप्रोच करूंगा, वुड यू लाइक टू ज्वाइन माय डिपार्टमेंट, देयर इज वन अपॉर्चुनिटी इन माय डिपार्टमेंट, विलिंगली ओके मैं अप्रोच करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बॉस ये मेरा इसका कुछ संबंध भी नहीं था, फिर भी इसने विलिंगली मेरे पास आके मेरा इतना काम सिंप्लीफाई किया। तो अगर ये मेरे डिपार्टमेंट में आएगा तो और मेरा डिपार्टमेंट कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी मेरे डिपार्टमेंट, राइट? सो आई विल बी अप्रोचिंग। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको मोर एम्प्लॉयबल बनाता है, ठीक है? तो before coming to the course information, I will like to take you to the Excel. किसी को अभी तक कुछ डाउट या क्वेरीज है? हाँ, हम्म, ओके, देखो अभी आपको जो एक्सेल आता है, ओके, आपको मोस्ट ऑफ दी डे टू डे लाइफ पे जो फॉर्मूले होते हैं, अभी अगर आप उसके फंक्शंस की बात करेंगे, इन नंबर्स ऑफ फंक्शन, ओके, कितना भी मास्टर बंदा होगा ना, वो भी उस चीज को मेमोराइज नहीं कर सकता, ओके, वो कैसा है, वो सिचुएशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है, तब जाके आप उसको यूज करते हैं, ओके, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो? राइट, इट्स नॉट बेसिक। आपको बेसिक लग रहा है लेकिन वो एडवांस की कैटेगरी में आता है, सम इफ, सम इफ्स, क्योंकि इसमें लॉजिकल बिल्डिंग है, ओके, वी लुकअप, ओके, वी लुकअप की भी मैं जब बात करूंगा, ये भी एक लॉजिक ही है, ओके, ये भले अभी आपका वो हैंड्स ऑन आ गया है उस पे, इसके लिए आपको वो बहुत इजी लग रहा है, आपको नींद में से भी उठा के पूछा तो आप बता दोगे, ओके, क्यों? क्योंकि आप 5-10 साल से वही चीज कर रहे हो, ओके, वही चीज यहाँ पे करना है आपको, लेकिन तरीका अलग है, ओके, जैसे जैसे हम कोर्स में बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा, आपको हेल्प मिलता है एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला, अभी मैं आपको कोई भी फॉर्मूला बोलता हूँ, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, ये टाइप करो, ठीक है, आपको नीचे हेल्प मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स लुकअप, तो अभी सबको पता है, एक्स लुकअप पता है आपको, एक्स एक्स, ओके, कोई बात नहीं, एक्स लुकअप लिखता हूँ। अब ये लुकअप वैल्यू क्या है, ये तो पता है आपको, व्हाट इज दिस लुकअप वैल्यू, जो वर्ड आपको गया, करेक्ट, लुकअप एरे, एरे मतलब क्या है यहाँ पे, ओके, फिर लुकअप एरे मतलब क्या, जिसके अंदर आपको ढूंढना है, राइट, यहाँ पे जो लुकअप की वैल्यू है वही यहाँ पे लुकअप एरे बन जाएगा, ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न एरे, एरे मतलब क्या, रेंज, आपने बताया, रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या, कौन सा रेंज आपको चाहिए, राइट, इफ नॉट फाउंड,
ओके, अगर फाइंड नहीं हुआ तो क्या चाहिए आपको, वो आपको लिखना है। मैच मोड, इसमें से आपको कौन सा मैच मोड चाहिए? देखो मैं आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू आर नाउ एबल टू आंसर इट। व्हाई? बिकॉज आपको अभी आपको हैबिट हो गई है वो सारी चीजों की, इवन दो दिस इज द न्यू फॉर्मूला। ओके, यू आर नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सिंटेक्स जो आए हुए हैं नीचे, जो हेल्प आई हुई है, उसके बेसिस पे नाउ यू आर एबल टू राइट दिस फॉर्मूला। फर्स्ट अटेम्प्ट पे फेल होंगे, सेकंड अटेम्प्ट पे फेल होंगे, थर्ड अटेम्प्ट पे फेल होंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ पे तो कंप्लीट हो गया, अगर आप खुद करने की कोशिश करोगे तो, राइट। फिर यहाँ पे आपका सर्च मोड, फर्स्ट टू लास्ट करना है या लास्ट टू फर्स्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। दिस इज द सक्सेसर ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप एंड इंडेक्स मैच। एक ही फॉर्मूले की बेसिस पे आप वी लुकअप भी कर सकते हो, एच लुकअप भी कर सकते हो। दिस इज द सक्सेसर। वी लुकअप का डिसएडवांटेज क्या है? यस, वी लुकअप सिर्फ राइट में ही चलता है, लेफ्ट में नहीं चलता। ठीक है, एच लुकअप कैसा है, सिर्फ डाउनवर्ड्स चलता है, अपवर्ड्स नहीं चलता। एक्स लुकअप जो है, जो अपने एरो कीज है ना, राइट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हर एक डायरेक्शन में चलेगा। अभी देखो आपने खुद नहीं बताया ना मुझे सारे आंसर्स इसके, सिंटेक्स मैंने बस आपको पूछा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यू आर प्रो इनटू इट। ओके, सो डोंट थिंक कि आपको एडवांस लेवल ही करोगे तो ये आएगा, नो। हाँ देखो, ये चीज है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। ओके, अभी ये आंसर आपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही दिया ना इसका, राइट और रॉन्ग? क्यों? आपका एक्सपीरियंस कब बना? जब आपने उतने इयर्स आपके उसमें इन्वेस्ट किए, तब जाके आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपके स्किल सेट डेवलप हुए। उसी तरीके से आपने कंटिन्यूअसली उसको यूज करते गए। यूज करना मतलब आपने प्रैक्टिस किया उसको, राइट। उसी तरीके से जब आप डे टू डे लाइफ में वीबीए को इस्तेमाल करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको रिकॉल होती रहेगी। अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ओके, आपने एक बार वीबीए कोड बना लिया, ठीक है, जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब किसी का वीबीए कोड एडिट करते जाते हो ना, आप जब उसको एनालिसिस करते हो, ओके, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये इसने जो है ये लाइन ऑफ कोड एबीसी लिखने के बजाय, सॉरी फॉर एग्जांपल पीक्यूआर उसने लिखा है, पीक्यूआर लिखने के बजाय ये तो और सिंप्लीफाई हो सकता था, एबीसी से भी हो सकता था। तो आप क्या करोगे, उसको एडिट करोगे, एबीसी लिखो, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना, अगर कोई एक्सेल फॉर्मूला अगर आप देखते हो, तो आप बोलोगे ना, अरे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा, इससे सिंपल तो इससे भी हो सकता है। आता है ना, आप जब भी आप कोई देखते हो, आपका जूनियर जब करता है, उसी तरीके से वहां पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल होती रहेगी। ओके, एंड बस अपना जो क्लास, जब भी अपना क्लास होगा ना कंप्लीट, ओके, मैं आपको नोट्स अपलोड करवा के दूंगा, ठीक है। मैं आपको नोट्स अपलोड करवा के दूंगा, तो नोट्स अपलोड करने का एक मिनट मैं बताता हूँ। अपना जो है वीडियोस नॉन रिकॉर्डिंग रहता है, तो जो भी क्वेरीज होती है आपको क्लास में ही पूछना है। ओके, सो ये अपनी वेबसाइट है, afckesstechnologies.in। ओके, आप बस afckesstechnologies जब लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये होम पेज आता है यहाँ पे, afckesstechnologies, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो we have started our journey in 2010। okay, so we are into this industry almost 14 years it's been। okay, अप्रैल में 14 years कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज मिलता है, तो आप जब यहाँ पे लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन रहता है, ठीक है। सो आई विल जस्ट लॉग इन एंड शो यू।
You have to type your mobile number over here. ओके, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड्स है, यहाँ पे नोट्स जो है ये जब तक AFCKS टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग कर रहा है तब तक ये नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये सारे नोट्स है, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। इफ यू सी, जब भी हमारा क्लास होता है तो हम यहाँ पे सारी चीजें अपलोड करते हैं। यू हैव टू डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट वेल। ओके, क्योंकि अपना जो क्लास है ये एवरी सैटरडे का है। ओके, संडे आपको मिलता है। ओके, मंडे टू फ्राइडे यू आर इन टू ऑफिस। जो भी हमने सीखा है ऑफिस में आपके पास स्पेयर टाइम रहता है, ठीक है, ऑफिस में प्रैक्टिस करो। डोंट थिंक कि आप छुट्टी के टाइम पे ही प्रैक्टिस करोगे, नेवर थिंक दैट। क्योंकि हम जो एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं दिस आर दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आप डायरेक्टली यहाँ पे सीखने के बाद थोड़े से माइन्यूट चेंजेस करने के बाद आप डायरेक्टली आपके ऑफिस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। समझ में आया? ये ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे हमारे, इट विल बी प्योरली 100% प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप जब आपके ऑफिस में इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज होगा कि अरे ये चीजें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, एंड माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है नोट्स के रिगार्डिंग? सागर एंड नेहा? yes. जब तक AFCKS टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग में है, ओके, ये जो लॉगिन आईडी आपका होगा दिस विल बी एग्जिस्टिंग, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। ओके, इवन दो अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी एनरोल किए होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पावर क्वेरी, पावर पॉइंट, पावर पीवोट, ठीक है, फिर एडवांस VBA, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल, मल्टीपल कोर्सेज है। तो एक ही बकेट में आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे अंडर वन यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। एंड माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी फॉर ऑल ऑफ यू, अब जब ये होम पेज पे जाओगे ना AFCKS टेक्नोलॉजीज के, ठीक है, AFCKS टेक्नोलॉजीज के बारे में सभी को पता है ना, क्योंकि मैं ये पार्ट भूल गया इंट्रोड्यूस करवाने का। सागर एंड नेहा, आपको इंस्टीट्यूट के बारे में पता है? ओके, नितिन आपको पता है इंस्टीट्यूट के बारे में? ओके, अच्छा, okay, so I will just quickly give you the introduction of our institute. ठीक है, so as I have said you, we have started this journey on April 2010 by our co-founder Raza Sagar. Okay, uh, and we are offering n number of courses. If you see over here, course page पे जब आप क्लिक करोगे, so advanced Excel से लेके हम multiple courses offer करते हैं, ठीक है, एंड इवन स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी है। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज पे अगर आप देखोगे तो SQL, पाइथन है, ठीक है, फिर एडवांस लेवल ऑफ VBA है, SQL सर्वर, किस तरीके से आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखनी मिलती है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव few groups on Telegram, query solving groups है। So my personal recommendation would be to join these groups। ये ग्रुप ज्वाइन करने का एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप ये ग्रुप जब ज्वाइन करोगे ना, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस टाइप से यूजर्स क्या करते हैं, ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं। ओके, क्वेरीज पोस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेरीज रहते हैं। यस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस किस तरीके से यूजर्स को आते हैं। आई विल जस्ट शो यू वन थिंग। एक मिनट चाहता हूँ, क्या हो गया इसका, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू।
ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्वेरी था हाउ टू फाइंड एक्चुअल आवर्स। देखो, ये क्वेश्चन था उसका, एक्चुअल वर्किंग आवर्स उसको फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे मैंने उसको सोल्यूशन दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। एंड ये आपको भी समझ में आ गया होगा देख के कि क्या था करके। हाँ, थोड़ा सा वो वीडियो, हाँ, ये इस वजह से मैंने क्यों जूम किया था ना उसको, इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टर पे ब्लर दिखेगा वो। ओके, तो किस तरीके से, क्योंकि जब उसने वो माइनस किया था ना, उसको डिजिट्स आए थे, जीरो डेसिमल्स में डिजिट आए थे। एंड जब उसने उसको कन्वर्ट किया था यूजर ने, तो वहां पे क्या हुआ था, उसने 1330 सेलेक्ट किया था, लेकिन उसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में चाहिए था, जिसके लिए 37 30 55 ये उसको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। ओके, सो ये ऐसी चीजें प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, काफी सारे यूजर्स को पता नहीं रहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे देखो, टोटल टाइम, डूइंग सेम बट नॉट वर्किंग, यू ऑल्सो हैव टू डू सेल्फ फॉर्मेटिंग। ओके, तो उसने कर दिया कंप्लीट। फिर उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल सेट्स है वो आपको पता चलता है। इवन इफ यू सी वीवीए का भी है यहाँ पे, देखो कोडिंग्स वगैरह यहाँ पे पोस्ट करते हैं लोग, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वगैरह। सो यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू हेल्प पीपल। ओके, तो ये, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, try to join these groups. Okay, and you will be able to assist people, and you will also come to know कि किस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, रियल लाइफ डिफिकल्टीज होती है जो यूजर्स फेस करते हैं, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम आउट। ओके, वैसे पावर बीआई का भी है, डेटा साइंस का भी है, एमएस एक्सेस का भी है, मल्टीपल चीजें हैं, ग्रुप्स हैं, सो यू कैन ज्वाइन दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जॉब ओपनिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जॉब पोस्टिंग्स आते रहते हैं। सो इफ यू थिंक कि जो भी पर्टिकुलर जॉब है इट्स सुटेबल फॉर यू, देन यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट 3.5 के से ज्यादा यूजर्स हैं वहाँ पे, जो हमारे एक स्टूडेंट्स हैं। ओके, ज्यादातर एक स्टूडेंट्स ने काफी सारे ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, एंड दे गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? सागर नेहा, नहीं ऑनलाइन में भी नहीं है। आपके जो भी क्वेरीज होंगे ना रिगार्डिंग क्लास, देखो रिकॉर्डिंग हम करते नहीं है। ओके, उसके पीछे रीजन ये है, आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल सिनेरियोस। अगर आप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, आपने रेयरली कभी देखा होगा उसको। एंड अगर आप ये इंप्रेशन में होंगे ना कि नहीं ठीक है, आज बोर हो रहा है, रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, यू विल नेवर अटेंड द क्लास। मार्क माय वर्ड्स, यू विल नेवर अटेंड द क्लास, बिकॉज रिकॉर्डिंग एक ऐसी चीज है ना जो यूजर को लेजी बनाती है। समझ में आया? क्योंकि अभी नदीम की बात करूं तो ही इज कमिंग फ्रॉम कोंडोवा, यू आर कमिंग फ्रॉम हड़पसर, राइट, यू आर कमिंग फ्रॉम विश्रांत वाली, राइट, दूर दूर से आ रहे हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया कि रिकॉर्डिंग है, सुबह उठ के इतने सुबह उठ के आना, एक बार आओगे, दो बार आओगे, तीसरी बार आप आओगे ही नहीं। वट यू विल बी अंडर इंप्रेशन, अरे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ह्यूमन टेंडेंसी है। इसके लिए वी स्ट्रांगली deny students that we will be giving you the recording or we will be recording it। ओके, सिर्फ हमारा डेमो क्लास रिकॉर्डिंग रहता है। ओके, लेकिन बाकी के जो एक्चुअल सेशन है वो रिकॉर्डिंग नहीं रहता, वरना फिर आप कुछ सीखोगे ही नहीं।
अगर आप क्लास में ही नहीं आओगे तो। ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियोस दैट वी हैव फेस्ड, इसके लिए फिर हम देते ही नहीं। हाँ, यस, करते नहीं, काफी सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, यूडीमी है, ओके। लेकिन वहां पे क्या है, आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे आप पूछ भी नहीं सकते। क्लास में कैसे क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो, ओके। भले आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो या ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो, आपके जो क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं वो रियल टाइम पे रिजॉल्व होते हैं। रिकॉर्डिंग में वैसा कुछ होता ही नहीं, ओके। तो इसलिए वी डोंट डू रिकॉर्डिंग्स ऑफ द वीडियो, ओके। सो डू यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज इनटू इट? ओके, सागर, नेहा, यस, ओके। सो और एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कोर्स का पैटर्न कैसे होगा। uh, हम जो भी सीखेंगे, ओके, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने ले लिया मैसेज बॉक्स का, हमने वो सीखा, मैंने आपको बताया, आई विल बी गिविंग यू टाइम टू प्रैक्टिस इट, रियल टाइम, हाँ, इमीडिएटली। अगर मैंने आपको 15 मिनट आपका सेशन लिया, 15-30 मिनट्स का सेशन लिया, आई विल बी गिविंग यू 15-20 मिनट्स ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस इट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे इमीडिएटली आपको डाउट्स आएंगे, अरे मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, ओके। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो रियल टाइम पे रिजॉल्व किए जाएंगे। इट इज नॉट लाइक कि हो गया खत्म, ऐसा नहीं, रियल टाइम पे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। एंड जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो हमारा बेसिकली पैटर्न क्या होता है कि पिछले क्लास में जो हमने कवर किया था, हम क्विकली उसका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट यू शुड बी रिकॉलिंग इट व्हाट वी हैव डन इट। एंड फिर अगर आपने हफ्ते भर में कुछ प्रैक्टिस किया होगा, आपको कुछ उसमें डाउट्स आए होंगे, कुछ चैलेंजेस आए होंगे कोडिंग्स लिखते समय, तो यू आस्क इन दैट क्लास, तो क्या होगा, वहां के वहां वो रिजॉल्व कर देंगे आप, सो दैट आप जब भी क्लास के बाहर जाओगे, सो नथिंग वुड बी इन योर माइंड कि ये डाउट है, ये कोई नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर किया जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर इनटू एक्सेल पार्ट, ओके। तो ये जो डेवलपर टैब है, ओके, डेवलपर टैब में ये विजुअल बेसिक है, काफी सारे यूजर्स के पीसी पे ये डेवलपर टैब एनेबल्ड नहीं रहता, ये आपको एनेबल करना पड़ता है, ओके। तो एनेबल करने का आप मुझे तरीका बता सकते हो, डेवलपर टैब कहाँ से एनेबल कर सकते हैं? सॉरी, फाइल्स में, ऑप्शंस में, ओके। लेकिन फाइल में ऑप्शंस में जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑप्शंस है, ये जितने सारे फंक्शंस हैं, ओके, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, इसको क्या कहते हैं? ये किसी एक चीज के ऊपर प्लेस्ड है, राइट? यस सागर, व्हाट यू सेड? करेक्ट, दिस आर कॉल्ड रिबन्स, ओके। ये रिबन्स के अंदर ये टैब्स है, होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, इसके अंदर ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं, ओके। दिस आर रिबन्स, ओके। तो जब आप फाइल्स में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन्स, ओके। अभी आप ये वर्ड से फेमिलियर हो, इस वजह से आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि कस्टमाइज रिबन्स में जाना, ओके। लेकिन फाइल्स, ऑप्शन, ये काफी लंबा रूट है, शॉर्टकट रूट क्या है इसका, रिबन्स के ऊपर राइट क्लिक करो, डायरेक्ट कस्टमाइज द रिबन्स, ओके। You should be familiar with this words, huh? As a developer you should be familiar with this words। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजुअली ये अनटिक रहता है डेवलपर, इसको बस आपको टिक करके ओके कर देना, तो ये यहाँ पे आ जाता है, एनेबल्ड हो जाता है। अभी मुझे क्वेश्चन है आपसे, कि जो एक्सेल से यहाँ पे प्लेस्ड, व्हाट इज दिस, आप इसको क्या बोलोगे? वर्कबुक, ओके। क्यों वर्कबुक बोलोगे आप इसको, एक्सेल फाइल्स है ना? करेक्ट, गाइस, सी,
आप जब अभी ये कोर्स सीख रहे हो, ओके, मेक श्योर कि यू आर नॉट कॉलिंग इट एज एन एक्सेल फाइल, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो तो एक्सेल फाइल नाम से वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे वर्कबुक है। समझ में आया? वर्कबुक के अंदर वर्कशीट है, वर्कशीट के अंदर रेंज सेल्स है। ओके, सो पुट अ हैबिट टू प्रोनाउंस दिस करेक्ट वर्ड्स। अभी आप ऑफिसेस में भी जाओगे तो इसको करेक्टली प्रोनाउंस करना। आज तक आप इसको एक्सेल फाइल एक्सेल फाइल एक्सेल फाइल से बोलते थे, अभी आप इसको एक्सेल फाइल्स मत बोलो, इसको वर्कबुक वर्कबुक बोलो, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, बी फेमिलियर टू दिस वर्ड, बिकॉज यही वर्ड्स है जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। ओके, अभी ये शीट्स है, ओके, वन शीट, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। बेसिकली ये शीट क्या काम करता है रियल लाइफ एग्जांपल में? अभी आपने बोला कि ये वर्कबुक है, राइट? तो ये शीट क्या काम करता है? करेक्ट, पेजेस की तरह काम करता है। बुक है, बुक के अंदर पेजेस। अभी इसको शीट नाम क्यों दिया है? क्योंकि यूएस में क्या बोलते हैं, पेजेस नहीं बोलते यूएस में शीट्स बोलते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट इज द यूएस प्रोडक्ट, इसके लिए वो शीट वर्ड ही यूज कर रहा है। समझ में आया? गॉट इट? ये लॉजिक समझ में आया आपको? हाँ, वर्कशीट, शीट लिख सकते हो आप। ओके, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, जब आप यहाँ पे विजुअल बेसिक्स में जाओगे ना, ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। तो हम यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट्स है, अभी यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ, ब्लैंक मॉड्यूल। हाँ, ये ना, ये काफी छोटा है। कौन सा वाला? ये वाला? एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर। अच्छा, ये जूम नहीं होगा। यहाँ पे एक मॉड्यूल है, हम मॉड्यूल के अंदर जब हम एक्चुअल क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ओके, तो अभी बस देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट वीक जब हम एक्चुअल क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है। ओके, हम जब कोडिंग्स लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल में हम यूजुअली कोडिंग्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे? तो यहाँ पे प्रोसीजर्स है, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर क्या है, सब फंक्शन। ओके, सब के अंदर ये क्या है, ये सब प्रोसीजर कहते हैं। ओके, इसमें भी क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये हम सीखेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, आप डायरेक्टली मुझे आंसर दे दो। ओके, पब्लिक एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस, व्हाट डज दिस मीन्स? करेक्ट, वेरी गुड। जिनको एक्सेस है वही प्राइवेट में जाके काम कर सकता है, पब्लिक इज पब्लिक, राइट? ओपन सोर्स है वो। वेरी गुड। फंक्शंस जब मैं बात करता हूँ, ओके, अभी मुझे एक बात बताना, आई विल जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन। फंक्शन एंड फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? होता सेम। ओके, अगर मैं आपको बोलूं वी लुकअप, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अभी जब मैं इस तरीके से वी लुकअप लिखता हूँ तो ये फंक्शन हुआ कि फॉर्मूला हुआ? ओके, तो ये फॉर्मूला कब बनेगा? वेरी गुड। ओके, नितिन, आपका जो क्वेश्चन था, एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए क्या? ओके, ये आप जो आंसर दे रहे हो ना, दिस इज कम्स अंडर एडवांस लेवल। ओके, देखो, बिना इक्वल्स टू लिखे अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एंड जैसे मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिखे लुकअप लिखता हूँ, दिस बिकम्स माय फॉर्मूला, क्योंकि ये यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है, ये आपको आउटपुट निकाल के देने वाला है, ये आउटपुट निकाल के नहीं देने वाला। ओके, गॉट इट? अभी फंक्शंस जो है आप कौन से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो एक्सेल की इनबिल्ड है, करेक्ट? लेकिन हम वीबीए में क्या सीखेंगे, कस्टमाइज फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं।
यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब मैं यूजर डिफाइंड बोलता हूँ या कस्टमाइज फंक्शन बोलता हूँ, व्हाट डज दिस मीन्स? यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फंक्शंस है। व्हाट डज दिस मीन्स? यूजर डिफाइंड या फिर कस्टमाइज फंक्शन। ओके नेहा, व्हाट यू वर सेइंग? हाँ, यूजर डिफाइंड मतलब क्या? वो इनबिल्ट तो आप करोगे ही ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट के लिए तो कोई वर्डिंग सही नहीं, वो तो इनबिल्ट यू करोगे ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये वर्ड। व्हाट डज दिस मीन्स टू यू? हाँ, डेटेड इज तो अभी कॉमन हो गया, वो तो एक्सेल के इनबिल्ट ही हो गया। ओके, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये दिख रहा है ऐड, एडिशन। डू यू थिंक एक्सेल में ये फंक्शंस होंगे? ऐड, एडिशन। अगर आप कोई नंबर्स को ऐड करते हो तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हो? अभी मेरे पास ये नंबर है 10+10। अगर इसको ऐड करना होगा तो आप क्या करोगे? सम, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एडिशन। दिस कॉमा दिस। सागर एंड नेहा, अगर आप ऑनलाइन आपका लैपटॉप अगर ओपन होगा, आपने लैपटॉप से अगर लॉगिन किया होगा, आप चेक करो, आपके यहाँ पे एडिशन बोल के कुछ नहीं होगा। ओके, मैं कुछ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखा है मैंने, इसमें से मुझे नंबर निकालना। मैंने सिंपली क्या लिखा? गेट नंबर। ऐसा कोई फंक्शन है एक्सेल में? दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब मैंने क्रिएट किया हुआ फंक्शन है, यूजर ने क्रिएट किया हुआ फंक्शन। ओके, हम ये भी चीज सीखने वाले हैं कि हम हमारे खुद के फंक्शंस किस तरीके से। यस, आप बना सकते हैं आपका खुद का एक्स लुकअप। करेगा ना? वो तो हम आपको बताएंगे ना, वो किस तरीके से आपको उसको चलाना है। ओके, वी विल बी शोइंग यू दैट थिंग्स कि किस तरीके से उसको चलाते हैं। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 1 to 1 फंक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी एक्सेल फाइल में आप यूज कर सकते हो उसको। ओके, उस हाँ, वो क्लास में सीखेंगे आप उसको। एडिंस, एडिंस नाम सुना है? एक्सेल एडिंस, उसको एक्सेल एडिंस में डालना पड़ता है। जब आप उसको एक्सेल एडिंस में डालोगे तब वो ठीक से काम करता है। फिर वो किसी भी वर्कबुक ओपन करो, वो काम करेगा। यस, ये आप एडिंस में सेव करोगे उसको। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे डेवलपर टैब पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 129 दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, एनेबल, एक यूजर फॉर्म ओपन हो गया मेरा। एंड इसके बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे मेरा यूजर फॉर्म ओपन हो गया। ये कहाँ से लाया मैंने? रिविंस में से लेकर आया यूजर फॉर्म। ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी हम आपको बताएं। ओके, ये तो जब हमारा क्लास एंड होता है ना तब का टॉपिक है ये। ओके, ये डिजाइनिंग वगैरह सब करना। दिस इज हाउ यू कुड मेक दी थिंग्स। ओके, तो इसके पहले काफी सारी चीजें आपको सीखनी है। गॉट इट? तो किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसमें? ये यूजर फॉर्म्स है, जो यहाँ पे आकर आपने देखा होगा यूजर फॉर्म है।
मॉड्यूल है क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल तो एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल, एडवांस लेवल ऑफ वीबीए कोर्स में होता है। हम मॉड्यूल यूजर फॉर्म देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीजर्स में थे, तो प्रोसीजर्स में मैंने आपको बताया सब प्रोसीजर क्या है। वीबीए का कोई भी कोड हो, ये सब प्रोसीजर से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट होते हैं। ओके, अगर आपने प्राइवेट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो ये एडवांस लेवल ऑफ वीबीए कोर्स में कवर किया जाता है कि किस तरीके से आप आपको खुद के प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूज करके आप आपकी कोडिंग्स कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने ये यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन किया है, उसी तरीके से आप यूजर डिफाइन प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं आपके खुद के। जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, हमारा एक पैटर्न है वीबीए में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड। ओके, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है ये आप आपके खुद के बना सकते हैं यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। एंड काफी सारी चीजें हैं राइट फ्रॉम द बेसिक्स कि ये प्रोजेक्ट विंडो और प्रॉपर्टीज, अगर हम यहाँ पे देखो व्यू में काफी सारी चीजें, ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर बेसिकली है क्या, आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। डिक्शनरी, कोई भी हर एक लैंग्वेज की एक डिक्शनरी है, राइट। डिक्शनरी क्यों बनाया गया है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई द डिक्शनरी इज मेड। ओके, और डिक्शनरी का पर्पस क्या है। करेक्ट, वो वर्ड का मीनिंग क्या है। नए वर्ड्स अगर आपको सीखने हैं तो उसके लिए, राइट, किसी ने अगर आपको कोई एक नया वर्ड बोल दिया, एक वर्ड बोल दिया जो आपके लिए टोटली न्यू है, व्हाट यू विल डू, यू विल गो एंड लुक इनटू द डिक्शनरी, राइट। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो है इट्स अ लाइब्रेरी बेसिकली। आप डिक्शनरी के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ओके, इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेथड उसकी पूरी लिस्ट है, एक्सेल फंक्शन की पूरी लिस्ट है, राइट। यहाँ पे एक्सेल फंक्शंस में फॉर्मूला बार्स में जब आप जाओगे, एक यहाँ पे जब आप जाओगे फॉर्मूला में, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शंस, सॉरी, यहाँ पे एक हम यहाँ फॉर्मूलाज में, कहाँ गया ये, इसकी पूरी लिस्ट कहाँ दिखती है आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखो यहाँ पे जिस तरीके से फंक्शन लाइब्रेरी है ना, इसमें ऑटोसम है, इंसर्ट फंक्शंस, या ये पूरी लिस्ट है, राइट। अभी यहाँ पे मुझे क्या, ये किस चीज का दिख रहा है, रिसेंटली यूज्ड वाले ही दिख रहे हैं, जो मैंने रिसेंटली यूज किया हुआ। ओके, अगर मुझे पूरा देखना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल सिलेक्ट कर दूंगा, राइट। ये देखो ये पूरे ऑल फंक्शंस हैं, करेक्ट। अभी इसमें से मुझे डेट एंड टाइम रिलेटेड देखना है। ओके, ये सेम डिक्शनरी के तरह काम कर रहा है, राइट। अगर डिक्शनरी में अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो आप क्या करते हो, उसके इनिशियल से वो पेज नंबर्स निकालते हो, राइट, फिल्टर आउट करते हो पेजेस को, एंड उसके अंदर फिर आप ढूंढते हो। उसी तरीके से देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम के रिलेटेड देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, पूरी लिस्ट दे देता है। ओके, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी लिखो के सर्च करोगे, देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट आती है। एक्सेल की क्लिक करोगे तो ये देखो ये पूरी लिस्ट आ रही है। अब ये जो हैंड वाला सिंबल है ना यहाँ पे, दिस इज प्रॉपर्टीज, दिस डिनोट्स द प्रॉपर्टी, एंड ये जो इरेजर वाला सिंबल है, दिस डिनोट्स द मेथड। ओके, इस तरीके से वो आइडेंटिफाई होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है, जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू, मैं कोडिंग पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको
बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ डेमो सेशन, तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें कवर करने हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से यूज करते हैं। ओके अगर आप कोडिंग लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है। जैसे कि लिखता हूँ दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शीट 1 फिलहाल के लिए, डॉट रेंज A1, राइट। इस तरीके से पैटर्न्स लिखते हैं। यस यस, एक्टिव वर्कबुक। वर्कशीट मतलब कौन से शीट में आपको काम करना है। अभी मेरे पास एक्टिव वर्कबुक कौन सी है यहाँ पे, मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ, ये जो ग्रे कलर है ना, इसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है, शीट 2 है। ओके, तो यहाँ पे मैं शीट 1 दिया। शीट 1 कौन सा, जो ब्रैकेट के अंदर का नाम है ना, वो नाम मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखे। तो ये जब टास्क परफॉर्म होगा तो ये इसके अंदर ही परफॉर्म होगा, इसके अंदर परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक कमांड दिया है कि इसके अंदर ही जाए। या नाम लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम कोडिंग लिखते हैं, है एकदम सिंपल। फिर इसके बाद आगे आपको क्या करना है, डॉट सेलेक्ट, बहुत सिंपल कोडिंग है। ओके, जब आप देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि यार यार इतना सिंपल है। ओके, समझ में आया ये चीज। ओके, आई विल बी आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन, हमारे पास डेटा कितने टाइप के होते हैं। वी आर प्लेइंग ऑन डेटा, राइट। डेटा कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल। ओके ओके, और ओके, आप अलाइनमेंट पार्ट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डेटा कितने टाइप के रहते हैं। यस सागर एंड नेहा, विल यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, डेटा कितने टाइप का रहता है। कौन से। एक मिनट मैं लिखता हूँ, नंबर, टेक्स्ट, ओके, और डेट, ओके, और एक आएगा स्पेशल कैरेक्टर, करेक्ट। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं ना। ओके, यस नेहा, यू वर सेइंग समथिंग। या ये बेसिकली 4 टाइप के डेटा सेट रहते हैं आपका। ओके, वीबीए में क्या हुआ है, इसको स्प्लिट किया है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। अभी आप मुझे बताओ, आपने जो ये 4 कैटेगरीज बताए, न्यूमेरिक में क्या गिरेगा, नॉन न्यूमेरिक में क्या गिरेगा। ओके, डेट एंड नंबर न्यूमेरिक में आएगा। ओके ओके गाइस, समझ में आया। जो डेटा रहता है ना, सिर्फ 2 ही टाइप का रहता है, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक। ओके, व्हेनेवर एनीबॉडी आस्क यू कि डेटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक, अगर उसने आपको इलैबोरेट करने बोला, देन यू हैव टू इलैबोरेट ऑल दिस थिंग्स। ओके, हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप्स बोलते हैं इसको। अभी जस्ट अ सेकेंड, ये ओपन हो रहा है।
थैंक यू लग रहा है इसको। ओके, अगर आप देखोगे एक्चुअली वो जो वेबसाइट में ओपन कर रहा था ना, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे उन्होंने सब एक साथ ही दिखाया हुआ है। एक मिनट, आई जस्ट ट्राई टू ओपन दिस अगेन। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उन्होंने सॉर्ट किया हुआ है डेटा टाइप्स। ठीक है, ये डेटा टाइप्स किस तरीके से यूज होते हैं, वी विल बी लुकिंग आउट इनटू इट। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो यूज करते हैं उसमें डेटा टाइप्स यूज नहीं होते, वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स रहता है। लेकिन हम जब वीबीए कोडिंग करेंगे हम इसके बेसिस पे करेंगे। समझ में आया? व्हाट डू यू थिंक कि ये डेटा टाइप्स यूज करने का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होगा? यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होगा? ओके, अगर मैं बाइट डेटा टाइप इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने, रेंज। तो इसका रेंज क्या है? 0 to 255, करेक्ट। अगर मुझे कोई अमाउंट डिक्लेयर करनी है, अमाउंट लिखनी है, तो मैं ये बाइट डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकता? राइट, इसके लिमिटेशंस है। इसका लिमिटेशंस कितना है? 255। तो ये मैं कोई भी अमाउंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता, बिकॉज अमाउंट्स कैन बी इन करोड़, तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे एज डिक्लेयर करनी, तो मैं कर सकता हूँ क्या? यू कैन यूज इट, राइट। क्यों? क्योंकि 0 to 255 के बीच में ही एज होगा, उससे ज्यादा तो 255 ईयर्स के बाद रहेंगे नहीं, राइट। ओके, अभी यहाँ पे है स्टोरेज साइज। व्हाट डज दिस मीन्स? स्टोरेज साइज यहाँ पे लिखा है 2 बाइट्स, यहाँ पे लिखा है 1 बाइट्स, यहाँ पे लिखा है 8 बाइट्स, यहाँ पे लिखा है 8 बाइट्स, डेसिमल्स में लिखा है 14 बाइट्स, डबल में लिखा है 8 बाइट्स, इंटीजर में लिखा है 2 बाइट्स। व्हाट डज दिस मीन्स स्टोरेज साइज? आपका जो एक्सेल वर्कबुक है, राइट, उसका स्टोरेज रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइज, राइट। अभी ये जो फाइल है मेरा इमरान क्वेरी कॉपी डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कबुक इन अ फोल्डर, ठीक है, इसका साइज कितना है? 15 KB। इसके अंदर मैंने मैक्रो लिखा है वो 15 KB का हुआ है। तो ये जो 15 KB हुआ है ना, ओके, दिस इज स्टोरेज। इसके जब भी आप करेक्ट मेथड इस्तेमाल करोगे ना, इसके बेसिस पे आपका जो मैक्रो का वर्कबुक है वो स्टोरेज कंसिडर करता है। समझ में आया? लोग बोलते हैं कि हमारा मैक्रो का काफी स्लो परफॉर्म कर रहा है, काफी स्लो परफॉर्म कर रहा है। हाँ तो आप, हाँ देखो, आपका जो हेवी है उसके पीछे दो पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपका डेटा सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपने उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट XLSX में होगा, बाइनरी में सेव किया, राइट। फिर भी वो ज्यादा टाइम ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारा डेटा सेट है वो हर एक रो में जाके तक काम कर रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा अ, अलग ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा।
यस, वो हो सकता है। उसमें उसमें एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग बोल के एक फीचर है, डिस्प्ले अलर्ट्स फीचर। हाँ, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं क्लास में, कि किस तरह आपको क्या करना पड़ता है बैकग्राउंड में जाके उसके जो स्क्रीन अपडेटिंग है, ठीक है, डिस्प्ले अलर्ट्स है, वो सबको टर्न ऑफ करना पड़ता है। मतलब आप उसको बेसिकली प्लेन टेक्स्ट की जैसा काम करवाओगे उससे। किसी भी चीज का अगर आपने डिस्प्लेस बंद कर दिया, राइट, अभी फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आते हैं, करेक्ट, उससे आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। अगर आपने वो जो नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दिए, आपकी बैटरी कंजम्पशन मेंटेन रहेगी, राइट, वो जल्दी फास्ट ड्रेन आउट नहीं होगी। उसी तरीके से वीबीए में भी आप जो नोटिफिकेशन है उसको टर्न ऑफ करवा सकते हैं, स्क्रीन अपडेटिंग, डिस्प्ले अलर्ट। ओके, ये जब आप टर्न ऑफ करते हो तो उससे आपका जो वीबीए का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बढ़ता है। इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ता है। इट्स सिमिलर टू दी नोटिफिकेशंस ऑन योर मोबाइल इफ यू टर्न इट ऑफ। ओके, बार बार आपका फोन बजेगा नहीं, करेक्ट, आपका फोन बार बार बजेगा नहीं तो आपका बैटरी कंज्यूम करेगा नहीं, आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी। ओके, तो वैसा ही है। अगर आपको देखना है तो आप मैन्युअली जाके चेक करोगे कि किसके मैसेजेस आए क्या, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी बैटरी हेल्थी रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो सारी टेक्निक्स है सब जो हम सीखेंगे। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? हम ये भी सीखेंगे ये किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेटा टाइप्स। एंड करेक्ट डेटा टाइप्स यूज करने का एडवांटेज भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप करेक्ट डेटा टाइप यूज करोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके एरर्स के चांसेस कम होते हैं, एंड डायरेक्टली आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि यही चीज इंसर्ट करना है। गॉट इट? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? सागर, नेहा, कुछ बाउंसर गया? यस यस यस, ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगी। ओके, तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली यही था कि हम क्या क्या कवर करेंगे। ओके, मैंने बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम एक्चुअल में स्टार्टअप करेंगे उस टाइम पे भी ये सेम चीज हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, एंड इनिशियल स्टेज पे हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो लिस्ट है ये ओपन करके रखेंगे अपने रेफरेंस के लिए, कि ओके मुझे अगर नंबर के साथ डील करना है, सो विच वन शुड आई यूज, अगर मुझे इसके साथ डील करना है तो विच वन शुड आई यूज। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, एनी क्वेश्चंस टुवर्ड्स वीबीए पॉइंट ऑफ व्यू? सागर, नेहा, एनी क्वेश्चंस टुवर्ड्स वीबीए पॉइंट ऑफ व्यू? हम्म, वीबीए का लेवल 1 एंड लेवल 2 है। इसके अलावा आप इसके अलावा आपको AFCKS के होम पेज पे जाना है। यहाँ पे कोर्सेज का पेज है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कोर्सेज है, ठीक है। VBA का यहाँ पे लेवल 1 है, एंड स्पेशलाइजेशन में देखोगे तो यहाँ पे VBA का लेवल 2 है, यहाँ पे एडवांस VBA यूजिंग क्लास मॉड्यूल एंड स्किल, ठीक है। ये लेवल 2 यहाँ पे आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये तो बेसिक कोर्स है एडवांस एक्सेल का। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेवलपिंग मोबाइल टैबलेट वेब एप्स यूजिंग पावर एप्स एंड पेजेस। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने जो आपको बोला पावर ऑटोमेट पावर एप्स,
यहाँ से आप वो भी कोर्सेस है। ओके, दैट कम्स अंडर आरपीए। देखो पावर ऑटोमेट आरपीए में आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365, ओके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 365। ओके, तो नदीम का क्वेश्चन था ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है क्या। माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस कौन से थे? एक्सेल के वर्जन कौन से थे? एक्सेल के वर्जन्स थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट। एक्सेल वर्जन 97 था, 2003 था, 2007 था, 2010 था, 2013, 2016, 2019, 2021। इस सब में क्या डिफरेंस है? ये क्या हुआ, ये अपडेट होते गया। अपडेट होने के साथ साथ इसमें नए फीचर्स ऐड ऑन होते गए। अगर मैं ये चाहूँ कि 2013 के जो फंक्शंस हैं वो 2003 में चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आउटडेटेड हो गया। ओके, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी बोल के एक पेज है जहाँ पे यूजर्स अपने फीडबैक देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं, फीडबैक्स देते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ यूजर्स ने ऐसा फीडबैक दिया था कि हम जब अभी नए लैपटॉप परचेस करते हैं, हमको बाय डिफॉल्ट 2021 मिलता है स्टूडेंट वर्जन। आने वाले टाइम में अगर माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 लॉन्च कर दिया तो 2021 तो आउटडेटेड हो गया, राइट और नॉट? 24 लॉन्च किया तो 21 आउटडेटेड हो गया, right? तो कंपनीज ने भी ये फीडबैक दिया कि हमको बार बार नया प्रोडक्ट परचेस करना पड़ रहा है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या? तो इसका सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा निकाला, अभी अगर आपके पास विंडोज 10 लाइसेंस वर्जन है, अब विंडोज 11 बिना विंडोज 10 को अनइंस्टॉल किए विंडोज 11 में आप माइग्रेट हो सकते हैं। पता है आपको ये चीज? यस, पॉपअप आता है, वो डायरेक्टली अपग्रेड होता है। अगर आपको विंडोज 7 टू विंडोज 10 में जाना होता था तो क्या करना पड़ता था? विंडोज 7 को अनइंस्टॉल करके विंडोज 10 इंस्टॉल करना पड़ता था, राइट? दिस वाज वेरी हेक्टिक टास्क। सिमिलरली विंडोज 10 टू विंडोज 11 लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी पे लोगों ने फीडबैक दिया कि बोला कि अगर आप विंडोज 11 लेकर आ रहे हो तो ऐसा मत करो कि विंडोज 10 को आप अनइंस्टॉल करके विंडोज 11 को इंस्टॉल करें। ओके, उसको अपडेट का फीचर दो। क्यों? द रीजन इज कि जब आप विंडोज अनइंस्टॉल करते हो आपका, उसके साथ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द डेटा, किसी ने बैकअप नहीं लिया वगैरह, होता है, जनरल प्रैक्टिस है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ये नया फीचर लॉन्च किया कि डायरेक्टली अपग्रेड कर लो। जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, डायरेक्ट अपग्रेड हो जाता है, राइट, आपका फोन टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। उसी तरीके से एमएस ऑफिस के लिए भी उन्होंने सेम चीज लेकर आई, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि यू हैव टू परचेस लाइसेंस फॉर 365, ऑफिस 365। अगर आप ये ऑफिस 365 परचेस करते हो तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होंगे इसमें ही आपको मिलेगा, और ये कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा यूजफुल चीज होगी। आपके ऑफिस में अगर आप आपके ऑफिस में अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे होंगे ना, यू कैन गिव रिकमेंडेशन टू योर ऑफिस पीपल टू परचेज द लाइसेंस फॉर ऑफिस 365। इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन होंगे, जो भी लेटेस्ट फंक्शंस होंगे, सब चलेगा, ये बस अपग्रेड होता रहेगा। ये सब आउटडेटेड हो गया आने वाले टाइम।
अभी इसमें माइक्रोसॉफ्ट के एफर्ट्स भी तो लग रहे हैं इतने सारे वर्जन रिलीज करने के लिए। उससे बेटर है कि ऑफिस 365 एक ही प्रोडक्ट उसके मल्टीपल वर्जन, और यूजर को कुछ करना ही नहीं, सिर्फ अपडेट करते रहो। समझ में आया? तो इसके लिए ऑफिस 365 इन्होंने लॉन्च किया। एंड सब लोग का रिकमेंडेशन यही है, जितने भी प्रोफेशनल से आप बात करोगे ना, दे विल बी टेलिंग यू टू परचेस ऑफिस 365 ओनली रादर देन 2021। या 2021 तो बाय डिफॉल्ट आता ही है न्यू लैपटॉप्स में, लेकिन आने वाले टाइम में ऑफिस 365 भी आएगा। समझ में आया डिफरेंस क्या है? एक प्रोडक्ट में मल्टीपल वर्जन्स, वरना यहाँ पे क्या होता था, 2019 को अनइंस्टॉल करके 2021 इंस्टॉल करो, तो ये अनइंस्टॉल फिर री इंस्टॉल, वो बहुत हेक्टिक वाला जॉब था। इसके लिए वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सारे फीचर्स लेकर आए। ओके, और कुछ डाउट या क्वेरीज? यस गाइस, और कुछ डाउट या क्वेरीज है आपके? पर्सनल लैपटॉप आप कौन सा विंडोज इस्तेमाल करते हैं? विंडोज 10 है। चलने को चलेगा, कोई प्रॉब्लम? एक्सेल कौन से वर्जन का? 16? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो चलने के लिए चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन मेक श्योर कि यू परचेस अ लाइसेंस वर्जन। ओके, लाइसेंस वर्जन परचेस करना एनी टाइम बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यू विल बी गेटिंग अपडेट्स। पायरेटेड वर्जन में क्या होता है कि स्पैम्स के नहीं, क्या साइबर अटैक से क्या सारे कंसर्न्स होते हैं। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज करते हैं लोग। और किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज? यस गाइस, और किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है क्या? सागर, नेहा? ओके, सो कमिंग बैक टू दी कोर्स इंफॉर्मेशन। सो हमारा जो बैच कोड होगा वो HPVB004 होगा। अ क्लास ड्यूरेशन वुड बी ऑफ 4 मंथ्स। ओके, ऐसा नहीं है कि ये 4 मंथ्स लिखा है तो 4 मंथ्स में ही कंप्लीट होगा। ओके, इट्स टोटली डिपेंडेबल ऑन यू गाइस। ठीक है, अगर आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली पहले भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा नहीं है, काफी सारे क्वेरीज आपको समझने में डिफिकल्टी जा रही है, तो दिस में गेट एक्सटेंड। तो ये मत समझना 4 महीना है तो 4 महीने में मुझे कोई टारगेट दिया गया रजा सर की तरफ से, कोई टारगेट वगैरह नहीं है कि 4 मंथ्स है तो 4 मंथ्स में ही कंप्लीट करना है। ओके, इट्स टोटली डिपेंडेबल ऑन यू गाइस। ठीक है, सो our batch will be every Saturday. It will be online as well as offline. ठीक है, तो जिनको ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जिनको जो ऑनलाइन वाले हैं उनको लगता है जैसे कि सागर है नया, इफ यू फील कि यू वांट टू कम ऑफलाइन देन यू कैन कम ऑफलाइन आल्सो। ओके, फिर बैच टाइमिंग इज 8 AM to 11 AM। ओके, हमारा जो एक्चुअल क्लास है नेक्स्ट वीक से स्टार्टअप होगा। कोर्स की फीस 9,000 रुपीज है। ओके, सो अगर आप पूरी फीस 20 जैन से पहले अगर पे आउट करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू हैव टू पे 8,100 रुपीज। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चूज करते हो तो ये डिस्काउंट फैसिलिटी जो है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। यू हैव टू पे दी फीस इनटू 2 इंस्टॉलमेंट, that is 4,500. Okay, first installment has to be paid before the before the first class, that is 20th of Jan, मतलब नेक्स्ट सैटरडे से पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको 20 फेब से पहले पे आउट करना है। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? हाँ, अभी जीएसटी का जो है, अगर आप जीएसटी बिल चाहते हैं, आप रियम्बर्स करना चाह रहे हैं कंपनी से। ओके, तो अगर आप रियम्बर्समेंट करना चाह रहे हो तो आपको रजा सर को प्री इंटीमेशन देना पड़ेगा इस चीज का।
तो आपको 9,000 के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होगा। ओके, 9,000 प्लस 18% जीएसटी। ओके, जीएसटी विल बी, हाँ उसका प्रॉपर आपको बिल मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको रजा सर को प्री इंटीमेशन देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि क्लास स्टार्ट हो गया फिर आप उनको मिड ऑफ द क्लास में बता रहे हो, ऐसा नहीं। आपको प्री इंटीमेशन देना पड़ेगा क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो इसके लिए हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है। आप आपके ऑफिस में चेक कर लो कि आप ये बीबीए का क्लास ज्वाइन कर रहे हो, इसकी इतनी इतनी फीस है, 9,000 प्लस जीएसटी फीस है, प्लस जीएसटी बोलना 18% जीएसटी। सो इतनी फीस है। सो यू विल बी गेटिंग रीएम्बर्समेंट और नॉट। अगर नहीं मिल रहा है रीएम्बर्समेंट तो आपको बस 9,000 पे करना है। अगर आपको रीएम्बर्समेंट मिल रहा है तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा, जिसके लिए आपको 18% एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? फीस पे करने का मल्टीपल मेथड्स हैं। आप डायरेक्टली यूपीआई आईडी आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे या फोन पे के थ्रू रजा सर को डायरेक्टली पे आउट कर सकते हो। ठीक है, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, दैट इज instamozo.com। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे आउट कर रहे हो वाया दिस प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, अगर आप instamozo.com से पे आउट कर रहे हो तो इसमें आपको नेटवर्क गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल होगा, दैट इज समवेयर अराउंड 3 to 4% एंड विच हैज टू बी बेयर्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को बेयर करना पड़ेगा 3 to 4% गेटवे चार्जेस। हाँ, कैश भी एप्लीकेबल है, तो आई वुड रिकमेंड कैश देने से बेटर कि रजा सर को गूगल पे कर दो। ठीक है, डायरेक्टली रजा सर को, ये रजा सर का नंबर है। ओके, जस्ट पे हिम आउट। आप इस नंबर नोट डाउन कर लो रजा सर का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप गूगल पे, यूपीआई आईडी या नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता। एंड यहाँ पे क्या होगा, आपको गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल होंगे इंस्टामोजो पे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये यूज नहीं कर रहे हो अननेसेसरी। 3 to 4% एक्स्ट्रा आपको पे आउट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पे आउट करना है, देन यू कैन गो थ्रू इट, लेकिन 3 to 4% एक्स्ट्रा लगेगा जो भी अमाउंट आप पे आउट कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, मेरा नंबर तो आप सभी के पास आ ही गया है, कल मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, तो सभी लोगों के पास मेरा नंबर ही। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो, सो मेक श्योर कि आप ये बैच कोड मेंशन कर रहे हो HPVB004। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा कि प्रोफेसर को पता रहेगा कि किस कोर्स के लिए फीस उनको रिसीव हुआ है। वरना क्या होता है, वो बैकएंड में जाके कंटिन्यूअसली चेकआउट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अननेसेसरी टाइम यूटिलाइज होता है, एक्स्ट्रा टाइम। तो अगर आप कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में, नरेशन में अगर आप ये मेंशन करते हो कि कोर्स फीस फॉर HPVB004, तो इमीडिएटली उनको पता चल जाएगा एंड दे विल बी मेकिंग द बैकएंड एंट्री अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आया? सागर एंड नेहा, हैव यू नोटेड डाउन द बैच कोड HPVB004? ओके, रजा सर का नंबर नोट डाउन किया है? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, apart from this, we have ended up demo session over here. So before ending, apart from this, I would be just telling you कि जैसे ही आपका फीस पे होता है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हमारा जो भी कॉन्वर्जेशन होगा रिगार्डिंग क्लासेस का, उसके अंदर हम पोस्ट करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज होंगे प्रैक्टिस करते समय, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है, आप उसमें पोस्ट किया करो। इन केस अगर मैं आंसर नहीं दे पाया ड्यू टू सम रीजन, ओके, जो भी स्टूडेंट अवेलेबल होगा उस क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे देना। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या क्वेरी आई थी एंड आपने आंसर दिया, तो आपका भी नॉलेज उसमें एनहांस होगा। ओके, ओके गाइस, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है?
Any doubt or queries? Sagar, Neha? Okay, ठीक है, then we will end our session over here. Okay, so we will meet next week. So have a nice day, friends. Bye.